अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने हल्के इंतखाब बांसवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों और कॉलोनियों का दौरा करके अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने बाज़ इलाकों में कचरे की अदम निकासी और नालियों में गंदगी पर बल्दी हुक्काम पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कचरे की कुंडियों में ही कचरा फेंके और अहदेदारों को हिदायत दी के खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए जाएं। स्पीकर ने मकामी हॉस्पिटल के सामने एक टी स्टाल पर चाय भी नोश की। उन्होंने गौलीगोड़ा इलाके में हुकूमत की तरफ से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का मुआयना भी किया। जितना अच्छा बनाने के बाद ये गली का हमारे बदबू आती ना, वहीं बैठे तो नहीं ना यहाँ पे डालने के यहाँ पे कहाँ है बाहर चाय कैसा तो अच्छी है। उधर अड़गा रादू బ్యాగులు వాడకూడదు, డ్రైనేజీలో ప్లాస్టిక్ వస్తువులు కానీ ఇతర వస్తువులు జుర్మానా విధించబడును. వ్యక్తిగా ఆడాడ ప్రతి కట్టే 50 ఇక్కడ కూడా పనిచేస్తున్నారు. नीचे बना के कोई पानी रुक जाता देखो काला पड़ साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा कि आइंदा साल से जिले सिद्दीपेट में हर घर को मट्टी के गणेश मूर्तियां फराहम की जाएंगी ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। गणेश त्यौहार के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्लास्टिक के खिलाफ आज बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने 9 साल कबल ही प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम कर दिया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि इससे तालाबों और मछलियों को नुकसान होता है। हरीश राव ने गणेश मंडपों में प्लास्टिक बैग को कतई इस्तेमाल न करने की जरूरत पर जोर दिया। ముందుకు పోయినటువంటి ఘనత మన సిద్దిపేట అమర్నాథ్ అన్నదాన సేవా సమితికే దక్కుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం దేశవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాం. నిన్న ఇయ్యాల నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఏమంటున్నారు, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఫిట్నెస్ చేయాలి, ప్లాస్టిక్ నిషేధించాలి. అంటే దేశం మొత్తం ఇప్పుడు మేల్కొంటున్నది. కానీ మన సిద్దిపేట మన అమర్నాథ్ సేవా సమితి 9 ఏళ్ల కింద నుంచే ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించిన ఘనత మీకే దక్కుతుందని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మానవ మనుగడ రోజు రోజుకు ప్రశ్నార్థకమవుతుంది. టన్నుల కొద్ది ప్లాస్టిక్ను మనం భూమండలం మీదకి తెస్తే అది 1000 ఏళ్ళైనా ప్లాస్టిక్ అనేది కరిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో భూమి అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ మయమైపోయేటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. ఇవాళ ఈ వినాయకులు కూడా మరి రంగురంగుల వినాయకులు, అదేవిధంగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో తయారు చేసిన వినాయకులు, ఇలాంటి వినాయకులు అన్నీ తీసుకుపోయి చెరువులో నిమజ్జనం చేయడం ద్వారా మరి మొత్తం చెరువు అంతా కూడా కలుషితమైపోతా ఉంది. అందులో ఉండే చేపలే కాదు, మొత్తం జీవకోటి మొత్తం కూడా చనిపోయి ఆ సమతుల్యత అనేటువంటిది లోపించేటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నది ముఖ్యం. మన భక్తి భగవంతుని మీద ధ్యానంలో ఉండాలి, మన పూజా కార్యక్రమంలో ఉండాలి. తద్వారా ఆ విఘ్నేశ్వరుడు కూడా మనకు చక్కటి ఫలాలను అందిస్తాడు. అలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం మన అమర్నాథ్ అన్నదాన సేవా సమితి తీసుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా వినాయకులను పెంచుకుంటూ పోయి ఈ సంవత్సరం 15,000 వినాయకులు ఇవ్వడం అనేటువంటిది నిజంగా అభినందనీయం. ఇవాళ మీరందరూ చాలా బాగా మరి కమిటీ బాగా పనిచేస్తున్నారు. మరి ఎక్కడనో జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా పోయి మనం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి వచ్చేటువంటి భక్తులకు మరి టిఫిన్ లాంటి సౌకర్యం, భోజన సౌకర్యాన్ని కల్పించినాం. అంటే మానవ సేవయే మాధవ సేవ అనేటువంటి సూక్తిని నిజం చేసినటువంటి ఘనత మన అమర్నాథ్ సేవా సమితికి మాత్రమే దక్కుతుంది.
సో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసిన సేవా సమితి సభ్యులను మనస్ఫూర్తిగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను అభినందిస్తాను. शहर के एक 3 साल लड़के ने अपनी गैर मामूली जहानत और काबिलियत के जरिए बुक ऑफ वंडर इंटरनेशनल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये लड़का कृष्णा देवारेड्डी किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली वामसी चंद रेड्डी का बेटा है। मलकपेट में मुनक़दा एक तकरीब में कृष्णा देवारेड्डी को तहनीत पेश की गई। लड़के की वालदा एश्लिशा रेड्डी ने बताया कि लड़का किसी भी मुल्क का परचम देखकर उसका नाम और उसके दारुल हुकूमत का नाम बता सकता है, जो उसकी जहनी सलाहियत और काबिलियत का नमूना है। He's 3 years old. When he was 2 years old, when he was 1.5, 2 years old, 1.5 साल और 2 साल के थे, मैं बहुत सारे पजल्स लाते थे, उनके एज रिलेटेड पजल्स लाते थे और बहुत जल्दी करते थे उन्होंने। वैसे I started improving it. I started moving to the next level. I started getting 3+, 4+, 5+ puzzles. Now he can do 7+ puzzles also. उसके बाद मैं ये हमारा इंडियन स्टेट्स, उसके कैपिटल्स, डिफरेंट कंट्रीज़, 90 कंट्रीज़, उसके कैपिटल्स, फ्लैग्स, ये सब सिखाना शुरू करे और बहुत जल्दी सीख लिए नो। उसके बाद सी एनिमल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, 5 variants, 36 variants of each category. He's learnt it very quickly. He knows about scientists, about 15 scientists, their inventions. He knows about freedom fighters, 15 freedom fighters. He knows about all the 7 wonders of the world, continents, almost planets. not 15 freedom fighters, that's 14. Continents, planets, oceans. And the best part is he identifies the country with its shape, state with its shape. You show it on anything in an iPad or you show it in a foam puzzle or a flat flow puzzle. He identifies the country and the state with its shape. So we of his achievements. Thank you. तमिलनाडु बीजेपी के साबिक सदर तिम्मिली साई सुंदरराजन को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो ESL नरसिम्हन की जगह लेंगी, जो तकरीबन 10 साल तक रियासत के गवर्नर रहने के बाद रिटायर हो गए हैं। इनकी मियाद का आगाज उनके हलफ लेने की तारीख से होगा। हैदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किए जाने पर शहर के सभी हलकों में जबरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। जो ही इत्तला आम हुई, बंडारू दत्तात्रेय के दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और उनके चाहने वाले उनकी रिहायशगाह पर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि बंडारू दत्तात्रेय ने बीजेपी के काम कारकुन की हैसियत से अपने सियासी कैरियर का आगाज किया था। वो हिंदू और मुसलमान दोनों तबकात में यकसा तौर पर मकबूल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी मेरे ऊपर जो भरोसा रखे, उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का पोस्ट गवर्नर का हिमाचल प्रदेश का जो दिया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद बताता हूँ। और वैसे ही उन्होंने जो विश्वास, जो भरोसा मेरे ऊपर लगाया, उसको पूरा निभाऊंगा और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए और वहाँ के समाज के लिए और वहाँ के भलाई के लिए मैं पूरा काम करूँगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप सेलेक्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी का HMD नगर नाचाराम में तहनीती जलसा मुनक़िद हुआ। उन्होंने पार्लियामानी इंतखाबात में उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाने पर राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हर वक्त दस्तियाब रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने TRS की हुकूमत पर अवामी वादों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के आमराना रवैये से अब काबीनी वज़रा भी बेजार हो चुके हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर सेहत E राजेंद्र के साथ चीफ मिनिस्टर के रवैये का भी हवाला दिया। మీ వాడిగా మీ బిడ్డగా గొంతు వినిపించాలని, ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా కలవకపోయినా, చాలా మందిని అడగకపోయినా మీకు మీరే బాధ్యతగా భావించి మీరు బాధ్యత తీసుకొని నన్ను గెలిపించి చట్టసభలకు పంపించడానికి నేను ఇది చాలా పెద్ద గొప్ప గౌరవం. రాజకీయాలలో ఇంటింటికి తిరిగి గడప గడప దొక్కి ప్రతి తలుపు తట్టి ఎంతో మంది గడపలో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళకు దండం పెడితే కానీ ఎన్నికలలో నెగ్గలేని పరిస్థితుల్లో ఎంతో ఖర్చు పెట్టి వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చినా కూడా ఫలితాలు వస్తావో రావో అనుకునే సందర్భంలో పైసా ఖర్చు లేకుండా నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా కలవకపోయినా, ఓటు అడగకపోయినా తక్కువ సమయంలో 14 రోజుల్లో 32 లక్షల మంది ఓటర్లు చైతన్యంతో కదిలి కాలనీలలో ఉన్న పెద్దలే కాదు మా ఆడపడుచు, మా సోదరి వాళ్ళందరూ కూడా మన బిడ్డ గెలవాలి, గెలిస్తే మన సమస్యల మీద మాట్లాడతాడు, మనం ఎప్పుడు కావాలన్నా వెళ్ళొచ్చు, కలవచ్చు, మన తరఫున నిలబడతాడు, కొట్లాడతాడు, కనబడతాడు అని చెప్పి మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ రోజులో 24 గంటలు కాదు, రోజుకు ఒకవేళ 48 గంటలు నా సమయాన్ని మీకోసం కేటాయించి సమస్యల మీద పోరాటం చేసినా కూడా తక్కువనే అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళం వివిధ వ్యాపారాలలో లేకపోతే విద్యావేత్తలుగా లేదా వివిధ రాజకీయ పార్టీల సానుభూతి పరులుగా शहर के तारीखी बालापुर गणेश उत्सव समिति के अरकान और पुलिस अहदेदारों का एक मुश्तरका इजलास आज डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें 10 रोज़ा त्यौहार के पुरअमन इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी इक़दाम के तहत 16 CCTV कैमरे गणेश मंडप के अतराफ नस्ब किए जाएंगे। नीज 400 पुलिस जवानों और अहदेदारों को तैनात किया जाएगा। आज बालापुर गणेश त्यौहार जो हर साल चलता है यहाँ पे, उसके बारे में कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जैसे कि रेवेन्यू, म्यूनसिपैलिटी, पुलिस और दूसरे ऑफिसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे ये त्यौहार को पीसफुल और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे और क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में देखेगा। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं जैसे रोड का रिपेयर और लाइटिंग के समस्या और CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन, उसके सबके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई और उसमें और क्या क्या करना है। और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने भी इसमें भरोसा दिलाया है कि जल्दी ये सारी कार्रवाई भी कंप्लीट कर ली जाएगी। और वैसे ही गणेश कमेटी के मेंबर्स और यहाँ के लोकल जो बड़े लोग हैं, लोकल गांव वाले जो भी लोग हैं, सब लोगों ने भी इस त्यौहार में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करके डिपार्टमेंट को भी कोऑपरेशन देने का वायदा किया है। तो सबके मेल जोल से, सबके कोऑपरेशन से इस बारी भी ये फेस्टिवल
अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये हम सबको भरोसा है। तेलंगाना स्टेट टीचर्स एम्प्लॉयज यूनियन ने असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को फौरी तौर पर पूर्ण करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत ने 15 अगस्त से असातिज़ा को पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात के तहत तनख्वाहें अदा करने का वादा किया था, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में अब तक अदायगी अमल में नहीं आई। वजीफे की कदीम स्कीम पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। एसोसिएशन के सदर टी तिरुपति रेड्डी ने धमकी दी कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात की जल्द से जल्द यकसुई न करे तो रियासत भर के असातिज़ा एहतजाजी मुहिम शुरू कर देंगे। హైదరాబాద్ జిల్లా మరి ఇన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వానితో సత్సంబంధాలను ఏర్పరచుకొని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మా హామీలని నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్ని రోజులు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇప్పుడు ఉపేక్షించేది లేదు. ఎందుకంటే అన్ని సమస్యలు తీసివేసినాయి విద్యాశాఖలో. ముఖ్యంగా ఈ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగులకు శాపంగా మారినటువంటి సిపిఎస్ విధానాన్ని వెంటనే రద్దుపరచాలని, ఎవరైనా సిపిఎస్ ఉద్యోగి చనిపోతే వాళ్ళకి ఎంత పెన్షన్ వస్తుందంటే దినసరి కూలీకి వచ్చినటువంటి వేతనం కూడా వాళ్ళకు పెన్షన్ రూపంగా రావడం లేదు. కాబట్టి సిపిఎస్ విధానాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలా. తర్వాత అదేవిధంగా విద్యాశాఖలో ఆఫీసర్ల పోస్టులు అన్నీ కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి. డిప్యూటీఓలు కానీ, డిప్యూటీ ఐఏఎస్లు కానీ, తర్వాత హెచ్ఎం పోస్టులు కానీ అన్నీ ఖాళీలు ఉన్నాయి. మరి విద్యా వ్యవస్థను పర్యవేక్షించాల్సినటువంటి పోస్టులే ఖాళీగా ఉంటే మరి విద్యా వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుంది? మరి భావి భారత పౌరులు ఏ విధంగా తయారవుతారు? మరి మన రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ పిఆర్సీని వెంటనే ప్రకటించాలని, ఐఆర్ను 42% ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అంతర్జిల్లా బదిలీలను చేపట్టాలా. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల ప్రమోషన్లను వెంటనే చేపడితే విద్యా వ్యవస్థ గాడిలో పడుతుందని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరి పండిత్ పీఈటీ పోస్టులను అప్గ్రేడ్ చేస్తామని ఇప్పటి వరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించారు, కానీ దాన్ని అమలుకు నోచుకోలేదు. కాబట్టి పండితులు పీఈటీలు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఆ పోస్టులను వెంటనే అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం रियासती हज कमेटी की तरफ से रवाना हुआ आज़मीन हज का पहला काफिला बाद अदायगी हज और ज़ियारत मुक़द्दसा कल रात हैदराबाद वापस हुआ। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इन हाजियों का इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस काफिले में 450 हाजी साहिबान शामिल थे। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बैगेज बेल्ट पर हाजियों की मदद के लिए 50 वॉलंटियर्स की खिदमत भी हासिल की गई थी। हाजी हजरात का काफ़िला आया है, बड़ी खुशी की बात है। इस साल हमारी तेलंगाना स्टेट से तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हाजी भी हमारे हैदराबाद से गए थे और आज पहला काफ़िला वापस आया है। और हमेशा हाजियों की खिदमत करने के लिए तेलंगाना बनने के बाद से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से जो हज को जाने वाले हजरात होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम का सीएम साहब ने हमें ख़ास तौर से बुलाकर कहा कि हज कमेटी चेयरमैन साहब को, मसीउल्लाह साहब को, कि इस मरतबा हाजियों के और अच्छे इंतजाम होना चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से मसीउल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किया और उनकी पूरी टीम को, और हमारे शफीउल्लाह साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे हज कमेटी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब को भी आज यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए आए। हर साल जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद हर साल दिन ब दिन बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए और हाजी हजरात जब वापस आ रहे थे कई लोगों से हमने पूछा कैसे रहे आपके इंतजाम। उन्होंने हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं ख़ास तौर से हज कमेटी चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने कहा, मेरी जानिब से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हज को जाने वाले लोग जितने भी हाजी होते हैं वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह का बुलावा आता है और अपने फ़राइज़ अदा करके हम अल्लाह से यही दुआ करें अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल
MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Dr. Arvind Kumar, MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Treatment for difficult fractures, joint replacement, arthroscopy surgery, spine surgery, all under one roof. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। गणेश त्योहार के पेश नजर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ होटलों और लॉजर्स की तलाशी ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल एम नरेंद्र की निगरानी में इंस्पेक्टर पी शिवा चंदर, एडिशनल इंस्पेक्टर बी नरसिम्हा और सब इंस्पेक्टरों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके दौरान होटलों और लॉजों में रहने वालों के मुतालिक कवायद और दीगर मालूमात हासिल की गई। हबीबनगर पीएस लिमिट्स में नामपल्ली रेलवे स्टेशन एरिया में लॉज की चेकिंग करने के लिए डीसीपी रेड जोन के आदेशानुसार मैं और मेरे साथ हबीबनगर इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर्स और 4 SIs, पूरा स्टाफ तमाम 10 लॉजों को 8:30 से लेके अभी 10:30 तक पूरा चेक करें कि रूम्स में कौन कौन है, किधर से आए, उन लोगों का आइडेंटिटी क्या है, पूरा चेक करें। उन लोगों का आइडेंटिटी लेने के बाद, उन लोगों से बात करने के बाद, वो लोग कई जगह से हैदराबाद को आए, क्या है, पूरा चेक करने के बाद कुछ भी सस्पेक्टेड पर्सन्स और कुछ भी आइटम्स नहीं मिले उन लोगों के पास, पूरा ये गणेश के तरफ से और ये मुहर्रम के तरफ से और पूरा चेकिंग चलते रहते, जारी रहते। इसमें लोगों को भरोसा देने के लिए हम पूरा चेकिंग शुरू करें। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने इन इत्तलात को गलत बताया कि कौमी शोबे के 10 बैंकों के इंतजाम के बाद बैंकों के सैकड़ों मुलाजिमीन अपनी मुलाजिमत से महरूम हो जाएंगे। चेन्नई में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक मुलाजिमीन की यूनियनों को इससे मुतालिक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम मुलाजिमीन की मुलाजिमतों को यकीनी बनाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कलराज मिश्रा का तबादला करके उन्हें राजस्थान का नया गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश में उनकी जगह नया गवर्नर मुकर्रर किया है। सदर जमहूरिया ने दीगर रियासतों के गवर्नरों का तकर्रुर किया है। उनमें महाराष्ट्र के लिए भगत सिंह गौशारी, केरला के लिए साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान और तेलंगाना के लिए डॉक्टर टी सुंदरराजन काबिल जिक्र है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर CH विद्यासागर, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है, रिटायर्ड हो गए हैं। रियासत के मंदिरों में काम करने वाले मुलाजिमीन की तंजीम ने एहतजाज करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से माजरत खाई का मुतालबा किया। तंजीम के सदर जे मुत्तैया ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने हिंदू औकाफ के महकमे को हिदायत दी कि वो मंदिरों में काम करने वालों के बारे में मालूमात करें कि आया वो हिंदू हैं या ईसाई हैं। उनकी इस हिदायत के बाद RSS के गुंडे भी दलित क्रिश्चियनों को निशाना बनाने लगे। करतारपुर राहदारी की तामीर के सिलसिले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टेक्निकल और इंजीनियरिंग टीमों का एक मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को अटारी वाघा बॉर्डर पर मुनक्किद होगा। इस मसले पर अब तक 2 इजलास मुनक्किद हो चुके हैं, जिनमें तरफेन ने 30 सितंबर तक करतारपुर राहदारी के लिए गुरदासपुर अमृतसर हाईवे पर 4.19 किलोमीटर की सड़क की तामीर से इत्तफाक किया था, जबकि 31 अक्टूबर तक डेरा बाबा नानक पर पैसेंजर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 15 एकड़ अराजी पर इस कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा है। इस कॉम्प्लेक्स से रोजाना 5000 अफराद इस्तेफादा कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के एक ओहदेदार
SCL दास, जिन्होंने गुज़िश्ता इजलास में शिरकत की थी, बताया कि दोनों ममालिक ने राब्ते का रास्ता खुला रखने और माहदे के तहत तमाम कामों की अंजामदही से इत्तफाक किया था। करतारपुर राहदारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर गुरदासपुर से 3 किलोमीटर दूर के फासले पर है। अगर ये खुल जाए तो सिखों को पाकिस्तानी इलाके करतारपुर में जाने आने में सहूलत होगी, जो कि बाबा गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में हाजिरी का मौका मिल सकेगा। यही वो मकाम है जो कि बाबा गुरु नानक जी की आखिरी आरामगाह भी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की माविन फिरदौस ऐवान ने गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात के बावजूद करतारपुर राहदारी का काम जारी रहेगा और दोनों ममालिक के दरमियान झगड़े का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अफवाज ने आज यमन के सूबे धामर के जुनूब मगरबी इलाके में वाक़ डिटेंशन सेंटर पर बमबारी की, जिसमें 52 अफराद हलाक हो गए। धामर यमन के दारुल हुकूमत सना से 62 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। बताया जाता है कि हुती बागी ये डिटेंशन सेंटर चला रहे थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 2014 से यमन में खाना जंगी जारी है। वज़ारत सेहत ने तौसीक़ की कि फ़िज़ाई हमले में 60 लोग मारे गए। हुती बागियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने मरने वालों की तस्वीर और हमले के मकाम की तस्वीर भी पोस्ट की हैं। एक और अहदेदार अब्दुल खादर अल मुर्तजा ने बताया कि इस सेंटर में 170 सरकारी अहदेदार महबूस थे, जिन्हें बागियों ने गिरफ्तार करके रखा था। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने दावा किया कि उसने बागियों के अड्डे को तबाह कर दिया है, जहां ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हथियार जमा करके रखे गए थे। पुलिस फलकनुमा ने इक़दाम कत्ल के केस के सिलसिले में 4 के मुजम्मला 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव के मुताबिक मुलजिमीन के नाम 30 साला अब्दुल फाजिल खान, 29 साला जाफर बिन हवेल और इमरान बताए जाते हैं। चौथा मुलजिम मफरूर है। मुलजिमीन के कब्जे से बैट और लोहे की सलाखें बरामद कर ली गई, जो कि 29 अगस्त को रात 1:30 बजे हुए इस हमले में इस्तेमाल किए गए थे। रात में एक कंप्लेंट आए थे, ताहिर खान ग्लैडिएटर जिम ओनर है, अपना नागुलबंडा के पास जिम है, जिम चलाते हैं इन्हों। अब्दुल फैज़ल और तीनों मिलके रात का टाइम में हमारे को मारे बोल के कंप्लेंट दे के उन हॉस्पिटल को चले गए। अपोलो संतोष नगर में उन ज्वाइन हुए थे। हमारे को इन्फॉर्मेशन आई तो इमीडिएटली हम जाके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। ऐसा अब्दुल फैज़ल, जाफ़र और दोनों मिलके हमारे ऊपर अटैक करे, बेस बैट्स, चाकू लेके यूज़ करे, हमारे ऊपर पुराना दुश्मन लगा के हमारे मारे बोल के उन स्टेटमेंट दिए। इमीडिएटली हम लोग 307 केस बुक करके इन लोगों को कस्टडी में लिए, दोनों को, अब्दुल फैज़ल को, जब्बार को। उसके साथ हम लोग इंट्रागेशन में उन लोगों को कुबले हम बेसबॉल्स, बैट्स रिकवरी करे। टाइम नहीं थे हमारे को, इसलिए कोर्ट को जुडिशल कस्टडी की भिजाया। फिर हम लोग कस्टडी लेके उसके पास एक चाकू है और जीप यूज़ करे सो है, वो 2 भी रिकवरी करते। इससे पहले इन लोग 8 महीने का नीचे इन दोनों दोस्ता है, बिजनेसमैन है। दोस्ताने में दोनों भी डिस्प्यूट्स आए थे, दोनों लड़ लिए थे। वो ओनर रह के दोनों का बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराया, मगर अब्दुल फैज़ल को कॉम्प्रोमाइज़ से उन्होंने खुशी नहीं थे, दिल पे रख लिए। 8 महीने के बाद उसको वेट करे, उन आए तो उसका पीछे पड़ के उसका मार डालने को दे के उन अब सेफ़ है, हॉस्पिटल में से भी डिस्चार्ज हो गए। आज उन लोगों को रिमांड करके जुडिशल कस्टडी भेजे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कई इलाकों का दौरा करते हुए वहां के अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनके हमरा मजलिस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें मीनार कॉलोनी, अली नगर, जमील कॉलोनी, एराकुंटा, शाहिज और ईदगाह वादी मुस्तफ़ा वगैरह शामिल थे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी का जो एरिया है उसके मुख्तलिफ डिवीज़नों में आज दौरा किया गया।
हमारी इब्तदाई मजालिस के सदूर मतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तदाई इसमें शरीक थे MSI साहब, उमर फाम साहब, दीगर लोग। यहाँ पर मीनार कॉलोनी से दौरे का आगाज़ हुआ, वहाँ से शाहिल्स गए, एराकुंटा, वादी मुस्तफ़ा, जलपल्ली ईदगाह। ये जलपल्ली ईदगाह में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने 2005 में ईदगाह का संग बुनियाद रखा था। वो ईदगाह के अतराफ़ में एक बड़ी वसी अराज़ी है जहाँ पर ख़बरस्तान बसाया गया और इसके तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ के लोग मुतालबा करें कि हिसारबंदी के ज़रिए इस क़ब्रस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ईदगाह का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और दीगर बस्तियों में जिसमें अली कॉलोनी भी शामिल है, वहाँ पर ड्रेनेज के पानी के मसाइल है। तमाम मसाइल को नोट किया गया, इंशाल्लाह जितना हो सके जल्द इन इलाक़ों में पहले पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जो लोग डीडियाँ भरे हैं उनको पहले पानी सरबराह करेंगे, बाकी लोगों की डीडियों को भी यहाँ पर दाखिल करवाएंगे। एरिया में काउंटर कायम करवा के ये काम करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज का काम है और SW ड्रेन का, आखिरी में आते हैं रोडों का काम होगा इंशाल्लाह। ये तमाम कामों की रिपोर्ट इस दौरे की सदर मजलिस नकीब मिलत असदुद्दीन साहब को पेश की जाएगी और सर साहब की हिदायत पर यहाँ के आहिस्ता आहिस्ता तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। मुसलसिल इस इलाक़े की पसमानदगी को दूर करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। इंशाल्लाह उनकी सरपरस्ती में जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मसाइल को हल कराती आई है, आइंदा भी हल करते रहेंगी और यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगी। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।